عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب انتخابات کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بینچ میں جسٹس منیر اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ نگران وزیر اعظم کے تقرر پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج دوسری بیٹھک ہوگی۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بے نتیجہ ختم ہوئی۔ ملاقات 1 سے 2 روز مزید چلنے کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے پیشگی ناموں میں شامل چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف واپس لندن پہنچ گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 1.5 ماہ سے زائد عرصہ امارات اور سعودی عرب میں گزار کر نواز شریف لندن واپس آ گئے۔ اس دوران انہوں نے 3 یورپی ملکوں کا بھی دورہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد نون لیگی رہنماؤں کی چند روز میں لندن آمد کا امکان ہے، جہاں مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی کے مجوزہ پلان پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرونا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے شہید ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تمغہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کے ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی کرونا وبا کے دوران خدمات کا اعتراف کیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس جان لیوا وبا سے شام میں جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم اس فرض شناس ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی مقروض رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرول فروخت پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس راہل کامران شیخ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرول کی سیل پر پابندی کے خلاف شہری عرفان بشیر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پیٹرول پمپوں پر بغیر ہیلمٹ پیٹرول کی سیل پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے بھی زبردست تیزی دیکھنے آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر نیٹ میں 1000 پوائنٹ کا نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس 68,800 پوائنٹ تک پہنچ گیا۔ گزشتہ روز پی ایس ایکس میں کاروبار کے منفی دن رہا اور دن کا اختتام 419 پوائنٹس کمی کے ساتھ 47,808 پوائنٹس پر ہوا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 15 پیسے بڑھ کر 287 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ کاروبار کے اختتام پر گزشتہ روز ڈالر 287 روپے 60 پیسے کا ہو گیا تھا۔ سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر اور میں ہوں محمد راشد بٹو۔ ہیڈ لائنز اپنا جانب بلیٹن کا باقاعدہ خاص مگر اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کے آغاز میں بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کا ذکر کریں تو عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا عدم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب میں انتخابات کیس میں
हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शक 3 के तनाजुर में अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपील लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र हुआ था। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। साबिक वजीर कानून और रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि पार्लियामान के इख्तियार में अदालत की बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं है। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होंगे। नून लीग रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नवाज शरीफ के केस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून साजी के बाद सब अब 5 साल बाद सियासत के लिए अहल हो चुके हैं। उनका मजीद कहना है कि सियासत में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। नून लीग रहनुमा का कहना था कि आर्टिकल 62 के तहत सजा पर नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ और दीगर लोग जिनको 184 के केसेस में ताहयात नाअहल किया गया, वो इलेक्शन एक्ट 232 के तहत 5 साल के बाद अहल हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में तरीकाकार वाज़ेह है कि इदारों के कैसे चलना है। अदालत का काम केसेस का फैसला करना है, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। आइन कहता है कि आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठा गया, लेकिन ये कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का पुराना मुतालिबा था। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि समय से बालातर है कि जिस डॉक्टर से शिफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा है कि दूसरा ऑपरेशन भी उसी से कराया जाए। साबिक वफाकी वजीर कानून ने कहा कि नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं, नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा कैसे हो सकती है। कातिल या रेप केसेस में सजा होती है तो सजा के 5 साल के बाद से आगे नाअहली नहीं जाती। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन का मियाद होती है। ये फैसले के बाद में होंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात से 1-2 रोज से मजीद चलने का भी इम्कान है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है। उम्मीद है कि इससे पहले मामला हल कर लेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। एक और मुलाकात का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की परवेज़ आज़म और शहबाज शरीफ से मुलाकात बिल्कुल बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात 1 से 2 रोज मजीद चलने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन हमें 3 दिन की राय देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे।
मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लंदन पहुंच चुके हैं। खानदानी जराये के मुताबिक 1.5 माह से ज्यादा अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारने के बाद नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच चुके हैं। उस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुतआदिद नून लीग रहनुमाओं के चंद रोज में ही लंदन आमद का इम्कान है, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के मुजवजा प्लान पर भी बातचीत होगी। फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में कैंप के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। खानदानी जराये के मुताबिक 1.5 माह से ज्यादा अरसा इमारात और सऊदी अरब में गुजार कर नवाज शरीफ लंदन वापस आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया। जराये का यह भी दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद नून लीग रहनुमाओं की चंद रोज में लंदन आमद का इम्कान है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी की मुजवजा प्लान पर भी बातचीत होगी। फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में ही कयाम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी और पीटीएम रहनुमाओं के एजाज में शाया भी देंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को दावत भिजवा दी गई है। खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मक्सी, साजिद मीर, अवैस नौरानी को भी दावत पर बुलाया गया। एमल वली खान, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब शेरपाव भी इजलास और इशाइया में शिरकत करेंगे। इजलास से काबिल मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमाओं के हमरा अलविदाई मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत भी करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। जी आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का दावा है कि आम इजलास आज तलब कर लिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों और पीडीएम रहनुमाओं के एजाज में अशाया भी देंगे। इसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को दावतनामा भिजवा दिया गया। खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मक्सी, साजिद मीर, अवैस नौरानी को भी दावत पर मदऊ किया गया। एमल वली खान, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब शेरपाव भी इजलास और आशाइये में शिरकत करेंगे। इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं के हमरा अलविदाई मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत भी करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तमखा इम्तियाज देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वबा के दौरान ही खदमात का एतराफ और खराज तहसीन पेश किया। उस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क के उन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम उन फर्जशनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इन डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना कौम का फख्र हैं। पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलूचिस्तान से 8 डॉक्टर्स को तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर से 4, गिलगित और इस्लामाबाद से एक डॉक्टर को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान भर से 59 नर्सिस और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी के खिलाफ शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक नोटिफिकेशन पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा देता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा है कि महज नोटिफिकेशन के जरिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ऐसा किया जाना आईन पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक की नफी है। मुनासिब है हुकूमत इस बारे में कानून साजी करे।
इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर हेलमेट के बगैर पेट्रोल न मिलने पर शहरी की बड़ी परेशानी लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह पाबंदी लगाना आईन पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। इसमें यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया है कि यौम आज़ादी शान शान और कौमी जज्बे से मनाई जाएगी। शानदार तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त के सुबह वक्त पूरे पंजाब के तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद होगा। इजलास में बताया गया है कि 14 अगस्त की शाम आवाम के लिए खुसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। नामवर गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। सुबह भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों में चरागा किया जाएगा। तमाम शहरों के नुमाया मकामात पर कौमी परचम आवेजा कर दिए जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मरूद गुलकार राहत फतेह अली खान अपने फन का मुजाहरा करेंगे। मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी भी की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि यौम आज़ादी पर हुजूरी बाग में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की तकरीब होगी। मुल्तान घंटा घर में परचम कुशाई जबकि कला में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट भी होगी। मुल्तान मेट्रो के रूट पर चरागा कर दिया जाएगा। यौम आज़ादी के मौका पर शजरकारी भी की जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की नहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से चरागा किया जाएगा। उस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पंजाब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हमारी इस्लाह की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। आज़ादी के लिए मुसलमानों ने आग व खून के दरिया बूट किए। आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन कौमी जोश जज्बे के साथ मनाती हैं। पंजाब भर में यौम आज़ादी को यादगार और मुनफरद तरीके से मनाया जाएगा। सूबाई वज़रा अजफर अली नासिर, मंसूर कादिर, सूबाई मुशीर वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि दीगर तमाम के कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करनी है। आम खबर आपको दे रहे हैं। यौम आज़ादी को शान शान और जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी मुतहर्रिक हो गए। मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया गया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया है कि यौम आज़ादी शान शान और कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया गया। शानदार तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी। 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त पूरे पंजाब में तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। इजलास में बताया गया है कि 14 अगस्त की शाम आवाम के लिए खुसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। नामवर गुलकार अपने फन का शानदार मुजाहरा करेंगे। सुबह भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया जाएगा। तमाम शाहराहों की नुमा मकामात पर कौमी परचम आवेजा किए जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान अपने फन का भरपूर मुजाहरा करेंगे। मीनार पाकिस्तान लाहौर और दीगर मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि यौम आज़ादी पर हजूरी बाग में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की तकरीब होगी। मुल्तान घंटा घर में परचम कुशाई, कला में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के निगरान वज़ीर आला के नाम से मुतालिक किसी पार्टी रहनुमा या काबीना रुकन से मुशावरत नहीं की गई। मुराद अली शाह चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर 14 अगस्त के बाद हो। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद मुराद अली शाह निगरान वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला नहीं हो सका। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आला के नाम से मुताल्लिक किसी पार्टी रहनुमा या काबीना रुकन से मुशावरत नहीं की है। मुराद अली शाह चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर 14 अगस्त के बाद हो। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद मुराद अली शाह निगरान वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं।
निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम का अभी कोई कुर्रा नहीं निकला। उसी हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के नाम से मुतालिक किसी पार्टी रहनुमा से अभी तक उन्होंने मुशावरत नहीं की और वो चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर 14 अगस्त के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद हो। मुराद अली शाह निगरान वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रहाई का बड़ा हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मानते हुए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रहाई के लिए PTI के 57 कारकुनान की फहरिस्त आड़ियाला जेल हुकाम को भेज दी गई है। अदालत ने 3 MP ऑर्डर मुअत्तल करके 57 PTI कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको बड़ी खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रिहाई के लिए PTI के 57 कारकुनान की फहरिस्त आड़ियाला जेल हुकाम को मुंतकिल कर दी गई है। अदालत ने 3 MP ऑर्डर मुअत्तल करके 57 PTI कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया है। पंजाब के बेशतर इजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जहां आइंदा दिनों में बारिश की पेशगोई की गई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान के मुताबिक पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि सूबे में 13 से 16 अगस्त तक मानसून बारिशों के कभी इम्कानात हैं। तर्जुमान PDM के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में तेज बारिश के इम्कानात हैं, जबकि रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, बरी और गुलियात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब दरियाओं की सूरत हाल पर तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि पंजाब के दरियाए चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और तरबेला और मंगला डैम 95% पानी से भर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि पंजाब के बेशतर इजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जहां आइंदा दिनों में बारिशों की पेशगोई की गई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि सूबे में 13 से 16 अगस्त तक मानसून बारिशों के भी इम्कानात हैं। तर्जुमान PDM के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में तेज बारिश के इम्कानात हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मरी और गुलियात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,815 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। जी हां, गुज़श्ता रोज PSX में कारोबार का मनफी दिन रहा और दिन का इख्तिताम 419 पॉइंट्स कमी के बाद 47,808 पॉइंट पर बंद हुआ था। जबकि दूसरी जानिब MSCI की पाकिस्तान के मजीद 15 स्टॉक्स को फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल करने से मुताल्लिक उसके बाद पाकिस्तान की 58 कंपनियां शामिल हो गई हैं। MSCI के फैसले का निफाज 1 सितंबर से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,815 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। जबकि गुज़श्ता रोज PSX में कारोबार का मनफी दिन रहा और दिन का इख्तिताम 419 पॉइंट्स कमी के बाद 47,808 पॉइंट पर बंद हुआ था। डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान का जिक्र करें तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे बढ़कर 287 रुपए 75 पैसे पर हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे का था।
डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे बढ़ गई है, 287 रुपए 75 पैसे हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़िश्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। खबरें मजीद भी होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कसूर से महकमा सेहत के अमले की हटतर्मी का जिक्र करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस डॉक्टर फारूक को आईना दिखाया तो वो बुरा मान खाए। रिपोर्टिंग करने पर निजी चैनल के रिपोर्टर मेहर अब्दुल रहमान के खिलाफ 506B का मुकदमा दर्ज करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए रोज डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से कई मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह गुज़श्ता रोज भी एक मरीज एड़ियां रगड़ता मर रहा था, मगर किसी डॉक्टर ने फरियाद तक न सुनी। मीडिया नुमाइंदगान ने मरने वाले के लाहिकीन का एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू किया तो नुमाइंदगान के मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई और गालम गलोच भी की गई, जिस पर नुमाइंदगान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एमएस डॉक्टर फारूक ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस पर कसूर की सहाफी बरादरी ने आज एक हंगामी इजलास बल्दिया चौक में तलब किया है। जिले भर के सहाफी बरादरी ने सोशल मीडिया पर मेहर अब्दुल रहमान से इजहार यकजहती की पोस्ट भी लगाना शुरू कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस डॉक्टर फारूक को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। रिपोर्टिंग करने पर निजी चैनल के रिपोर्टर मेहर अब्दुल रहमान के खिलाफ 506B का मुकदमा दर्ज करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए रोज डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से कई मरीज जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी एक मरीज एड़ियां रगड़ कर मरता रहा, मगर किसी डॉक्टर ने फरियाद न सुनी। जब उनकी फरियाद की रिकॉर्डिंग के लिए मीडिया नुमाइंदगान ने मरने वाले के लवाहिकीन का एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू किया तो नुमाइंदगान के मोबाइल फोन छीने गए, उनसे गालिम गलोच की गई, जिस पर नुमाइंदगान ने एहतजाज किया। एमएस डॉक्टर फारूक ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस पर कसूर की सहाफी बरादरी ने आज एक हंगामी इजलास बल्दिया चौक में तलब कर लिया है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। कसूर में एमएस डॉक्टर की मुबैना गफलत और हटधर्मी का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जिला भर के सहाफी बरादरी ने सोशल मीडिया पर मेहर अब्दुल रहमान से इज़हार यकजहती के लिए पोस्टें भी लगाना शुरू कर दी हैं और सहाफी बरादरी कसूर की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है, क्योंकि रिपोर्टिंग करना सहाफी का जुर्म बन गया और उसके खिलाफ एमएस डॉक्टर फारूक ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सर सैयद पुलिस का बरवक्त एक्शन। सोशल मीडिया पर नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर शोरूम से नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। देखते हैं कराची से मुजतबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज नागन चौरंगी के करीब रेंट ए कार के दफ्तर में एक शख्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। वाक़े में मुलव्वस 2 मुलजमान को सर सैयद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान अली और उमार नामी शख्स, जिन्होंने बताया कि मकतूल अदील से 15-16 लाख रुपए लेने थे और वो काफी अरसे से पैसे नहीं दे रहा था। 8 अगस्त को अदील उनके हाथ लगा, जिसे मुलजमान शोरूम पर ले आए, जहां उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाई। मुलजमान अदील को शोरूम में बंद करके चले गए, जिसके बाद मुतासरा शख्स शोरूम में ही जाँ भाग हो गया। 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर 2 मुलजमान अली और उमार को बिस्मिल्लाह होटल पर बैठे हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की निशानदेही पर जब शोरूम पहुंचे तो अदील को शोरूम में मुर्दा हालत में देखा, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। गिरफ्तार मुलजमान ने दीगर मुलस मुलजमान के नाम भी बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सर सैयद पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे मौजूद हूँ। शोरकोट में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जंग के ज़ेर सदारत सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें गंदम की फसल की नुमाइशी प्लॉट लगाने वाले किसानों को चेक तकसीम किए गए हैं और चावल की काश्त के बारे में भी
आगाही दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम शब्बीर ताहिर से। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ महकमा ज़राअत ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो महकमा ज़राअत ऑफिस शोरकोट में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें किसानों को वीट की फसल में जो नुमाइशी प्लाट थे उनको चेक भी तस्लीम किए गए, साथ जो चावल की फसल काश्त की जा रही है उसके बारे में आगाही मुहिम भी दी जा रही है। मैं सर डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट जंग जैसा मौजूद है, सब बताइएगा आप यहाँ पर स्पेशल मीटिंग भी ली है आज और आपने किसानों को स्पेशल मोटिवेट भी किया, चेक भी तस्लीम किए हैं, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशली जो हमारा वीट का प्रोजेक्ट था उसके तहत हमारे जो नुमाइशी प्लाट लगाए गए थे उसमें 62 फार्मर को हमने चेक तकसीम किए हैं नुमाइशी प्लाट के, और उसकी 11,000 अमाउंट है पर हर चेक की। तो वो खुश नसीब जिन्होंने नुमाइशी प्लाट लगाए, अच्छी पैदावार ली, उनकी हौसला अफजाई के लिए, हालांकि ये अमाउंट तो बहुत थोड़ी है लेकिन फिर भी उसको उनकी हौसला अफजाई के लिए, और उन्होंने जो महकमा ने सिफारिश के मुताबिक गंदम काश्त की और अच्छी पैदावार ली, और उस दूसरे ज़मींदार देख के जब उसको फॉलो करेंगे तो लाजमी पूरे मुल्क की पैदावार जो गंदम की वो बढ़ेगी। इसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम जो किया गया और ज़मींदारों को वो चेक तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा ज़मींदारों को राइस की फसल जो है उसके मतलब जो है उसकी पैदावार टेक्नोलॉजी के मतलब बताया गया और किस तरह ज़्यादा पैदावार लेनी है और किस तरह चावल की फसल को आखिर तक उसको कंट्रोल करना है, कीड़े को, बीमारी को, और ताकि उसमें जो हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है उसके जो जहरीले असरात हैं, बाकियात हैं, वो उसमें मौजूद ना रहें, ताकि हमारी फसल की जो है अच्छी कीमत लगे और जब हम उसको एक्सपोर्ट करें तो हमें अच्छे ज़र मुबादला उससे मिल सके। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि किसानों को मोटिवेट करना था कि जो ग्रोवर्स हैं वो अपनी फसल को किस तरह जो चावल की फसल आ रही है उसको किस तरह उन्होंने उसकी हिफाजत करनी है, कीड़े का कंट्रोल किस तरह करना है, उनको मोटिवेट किया गया। और साथ साथ जो किसानों ने अच्छी फसल काश्त की और अच्छी पैदावार ली उनको भी इंकरेज करने के लिए उनको स्पेशल इनामात भी दिए गए, चेक भी दिए गए, ताकि दूसरे किसान मोटिवेट हो सके और बेहतर से बेहतर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसलिए किसानों पर और स्पेशली हुकूमत की तरफ से ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया कि किसानों को उनकी मराद जो उनको दी जाए और साथ उनको साथ अप्रिशिएट भी किया जाए, साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया जाए कि अपनी आने वाली फसल किस तरह उसको तैयारी करनी। 14 अगस्त की आमद है, हर तरफ जश्न का समा है, लोग आज़ादी के हवाले से खरीदारी में मसरूफ हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़ाहिर पीर में भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई, जगह जगह स्टॉल सज गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उन्हीं से अपडेट्स लेते हैं कि जी आसिफ इकबाल बताइएगा कि ज़ाहिर पीर के शहरी किस तरह पुरजोश हैं 14 अगस्त को लेकर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। माह अगस्त का आगाज होते ही ज़ाहिर पीर पे जो है जगह जगह पर सब हलाली झंडों के जो है स्टॉल लग चुके हैं। आपको बताता चलूँ कि महंगाई के होने के बावजूद भी शहरों का जो है रश मंडवाया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या खरीदारी के लिए आए हैं। भाई बताइए कि क्या लेने के आए हैं? हमने बच्चों के कपड़े लेने हैं 14 अगस्त के लिए, कुछ झंडे वगैरह लेने हैं, कुछ और सामान भी लेना है। महंगाई का बताएं, कुछ रेट में महंगाई बहुत ज्यादा है, जो पहले हम 300 का सूट लेते थे वो अभी 700 का मिल रहा है, और जज्बा इतना है कि हद से भी ज्यादा है। जी अपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन मुल्क की जो है मोहब्बत हमारे लिए इतनी है कि हम महंगाई को पुष्ट डालकर जो है खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 14 अगस्त के दिन खास तौर पर जो है वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें ताकि वो तेज रफ्तारी वन व्हीलिंग के मुर्तकिब ना हो और अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। दूसरी जानिब वज़ीर सिंध सैयद मुराद शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन खसूसी, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक सिंध काबीना ने निगरान हुकूमत के दौरान सूबे में तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध काबीना ने SPSC की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। काबीना ने डिवीजन्स के मंसूबों से मुतालिक भी जरूरी तकर्रियां जारी रखने का फैसला किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध काबीना से मुतालिक आज अलविदाई इजलास हुआ जिसमें वज़ीर सिंध सैयद मुराद शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन खसूसी, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक सिंध काबीना ने निगरान हुकूमत के दौरान सूबे में तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी है। सिंध काबीना ने SPS की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया। काबीना ने जोनल एजेंसीज के मंसूबों के लिए जरूरी तकर्रियां जारी रखने का भी फैसला किया है।
ओगोकी में डूस बेनेडिया के मकाम पर सुलेमानी वेलफेयर का मुशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद हफीज बेनेडिया के अलावा मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे हजारा डिवीजन उमर खताब की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट मानसरा तहसील उगी 20 बीड़िया के मकाम पर शलमानी तंजीम के बारे में मशावरती प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अब्दुल खलीम शलमानी थे। KPK से आए हुए मेहमान दिल मोहम्मद पेशावर, हबीब शाह शांगला, मोहम्मद खयात खान मलाकन, मोमन खान चरसदा, अख्तर खान दरबंद, मलक मोहम्मद निसार बफा, मोहम्मद सलीम कलंदराबाद, वकार अहमद दरबंद, अदरीस खान शेरगढ़, हाजी निसार दरबंद, मुश्ताक खारीपुर, हबीबुर रहमान मानसरा, मोहम्मद नियाज कलंदराबाद, फजल अकबर खारीपुर, मोहम्मद मस्कीन लाला छतर प्लेन, सलीम खान मानसरा, नसीब खान उगी, सलीम खान एबटाबाद, फजल दाद चरसदा, मोहम्मद जाद बटखेला, आफ्ताब खान शाहकोट, वकार खान दरबंद, मलक निसार बफा, उमर जाद शाहकोट, तैमूर खान शाहकोट, फजल दाद चरसदा, मुश्ताक खान मानसरा, महबूबुल्लाह बटग्राम, उमर फारूक बटग्राम, वलीद खान उगी मौलाना, जमशेद खान उगी, मोहम्मद जुनैद साहब उगी, मोहम्मद जायद शांगला, मोहम्मद नज़ीर उगी के अलावा कसीर तादाद में कबीले के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद हाफिज ने कहा कि हम सलमानी कबीले को इकट्ठा करके तज़ीन शाजी करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी है। आटा, घी, चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया, इसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स वीराने के मंजर पेश करने लगे। इस पर बात करेंगे कोटोदूर से हमारे नुमाइंदे मीर हमजा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, किस कदर कीमतों में इजाफा किया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहबाज हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर से सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी है। जो चीनी की कीमत है उसमें जो है 30 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर आटे की बात की जाए तो 10 किलो के बैग पे जो है 248 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर घी की बात की जाए तो घी पर भी जो है 53 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पहले जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत जो कस्टमर्स को जो है वो आटा जो है 400 रुपये का जो है 10 किलो बैग जो है वो फ्राहम किया जा रहा था, लेकिन अब जो है 248 रुपये जो है वो रेट बढ़ा दिया गया। इस वक्त जो कीमत है जो है वो 48 रुपये जो है वो कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर घी की बात करता चलूँ, घी जो है वो 300 रुपये जो है पर केजी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। इस वक्त जो है उस पर 53 रुपये जो इजाफा कर दिया गया है। जो नई कीमत है वो 353 रुपये जो है वो कर दी गई है। अगर चीनी की बात करता चलूँ, चीनी पे जो है पहले 70 रुपये जो है फ़ी किलो जो है वो मुहैया की जा रही थी, लेकिन अब जो है 30 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत जो है वो 100 रुपये कर दी गई है। तो यहाँ पे अशिया जो है वो कई माह से जो है मुहैया नहीं की जा रही गवर्नमेंट की जानिब से, और दूसरा जो है कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। ओपन मार्केट में पहले ही जो शहरी हैं वो महंगाई की चक्की में जो है पिस गए थे मुकम्मल तौर पे, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है जो ये सब्सिडाइज वाली अशिया थी इनकी कीमतें जो है वो 2 गुना बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से जो आम तबका है वो मुकम्मल तौर पर जो है अब महंगाई की चक्की में जो है रगड़ता दिखाई दे रहा है। शहरियों से हमारी इस हवाले से बात हुई, शहरियों की जानिब से यही कहना है कि जो निगरान हुकूमत है वो जो है खुदारा आम आदमी में जो है रहम खाए, और जो सब्सिडीज पहले जो फराहम की जा रही थी यूटिलिटी स्टोर पर जो है उसको दोबारा बहाल करे, ताकि जो आम आदमी है वो रोज़मर्रा की जो आटा, घी, चीनी, दालें, चावल और इसी के साथ साथ दीगर जो मिसाला जात हैं वो जो है बासानी घर में जो है इस्तेमाल करे। और मज़ीद शहरियों का ये भी कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है इन अशिया की फराहमी को जो है यकीनी बनाया जाए। जी, गुजरावाला से दिल दहला देने वाली खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जहां पर मस्जिद अबू बकर सदीक A1 वापटा टाउन का इमाम मस्जिद जल्लाद बन चुका है। तफसीलात के मुताबिक सैफुर रहमान नामी शख्स जो कि इमाम मस्जिद बताता है खुद को अपनी बीवी को घर के बाथरूम में बंद कर रखा है, जहां उस पर बेहमाना तशद्दुद करता था और शोर करने पर अपनी बीवी के जख्मों पर नमक और गर्म पानी फेंक कर अजियत देता था। मजरूबा के भाइयों ने पुलिस की मदद से अपनी बहन को बाजियात करवाकर मेडिकल हासिल करने के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, मगर मकामी पुलिस अभी तक कार्रवाई से गुरेजा है। मजरूबा के भाई शहजाद ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और सैफ जैसे दरिंदा सिफ्त शख्स को सलाखों के पीछे ढकेला जाए।
ये अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं गुजरावाला से, जहां पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। इमाम मस्जिद अबू बकर सदीक A1 वापड़ा टाउन का इमाम मस्जिद जिलाद बन चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमाम मस्जिद सैफुर रहमान नामी शख्स, जो कि इमाम मस्जिद बताया जा रहा है, अपनी बीवी को घर के बाथरूम में बंद कर रखा था, जहां पर उस पर बेईमाना तशद्दुद करता था और शोर करने पर अपनी ही बीवी के जख्मों पर नमक और गर्म पानी फेंक कर अजियत देता था। मजरूबा के भाइयों ने पुलिस की मदद से अपनी बहन को बाजियाब करवा कर मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके मुतलका पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर कर दी, मगर मकामी पुलिस अभी तक कार्रवाई से गुरेजा है। मजरूबा के भाई शहजाद ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और सैफ जैसे दरिंदा को सलाखों के पीछे धकेला जाए। जश्न आज़ादी का जिक्र करें तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह एबटाबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। शहर भर सब्ज हिलाली परचमों झंडियों से सज गया, जगमगा उठा है। शहरियों की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात वहाँ पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अबैदुर रहमान सलमानी से जुबैर सलमानी का कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैन बाज़ार एबटाबाद में मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाने के लिए अवाम अन्नास की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर भी मौजूद है और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए जा चुके हैं, जहां पर बच्चों के लिए कपड़े हैं, बैजेज़ हैं, टोपियां हैं और इसी तरह झंडे हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें यहां पर मौजूद हैं। और जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहते हैं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों का जोश व खरोश है, वो ख़रीदारी कर रहे हैं और मेरे लोगों से क्योंकि ज़ाहिर है ये मुल्क बड़े कुर्बानियों से बना है, तो मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के झंडे ख़रीदें, इतनी तादाद में ख़रीदें जिसको फिर आप संभाल भी सकेंगे ताकि उसकी बेहरमती भी ना हो और बेहतरीन तरीके से जो 14 अगस्त है वो हम मना सकें। ज़बरदस्त है माशाल्लाह इस दफ़ा। बिल्कुल जी, हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये झंडे जो लोग ख़रीदते हैं उसको ज़रूर मलूज़ नज़र रखें ताकि वो झंडे बाद में 14 अगस्त के बाद सड़कों पर ना हो, ज़मीन पर ना हो, उसको हमेशा ऊंचा ही ऊंचा करके रखना है। और इसी तरह तैयारियां जो है बड़े जोश व जज्बे के साथ हैं और लोग जो हैं इस वक्त कपड़े भी खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद प्रेस क्लब में 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों और उनके अहले खाना के लिए हेपेटाइटिस C, B और छाती के एक्सरे समेत दीगर तिब्बी टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मेंबरान की जानिब से प्रेस क्लब इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आज़म खान नियाजी से। जी आज़म, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब में 2 रोज़ा मेडिकल कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं और उनको जो मेडिसिन दी जा रही है उसके लिए हमारे पास डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं और कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो कैंप लगा हुआ है इसमें आपने कौन कौन से टेस्ट किए हैं और कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ा कैंप का अहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट फैसलाबाद की तरफ से फैसलाबाद प्रेस क्लब में अरेंज किया गया और इसका जो मकसद है वो सहाफ़ी बरादरी और उनके ख़ानदान के अंदर जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं उनके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जिसके अंदर जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट हैं। जबकि इसी कैंप के अंदर हेपेटाइटिस B और कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ाम भी मौजूद किया गया। तो यहाँ पे आने वाले तमाम जो लोग हैं उनको पहले रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद उनके फ़िज़िकल पैरामीटर जिनमें उनकी हाइट है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हेपेटाइटिस B, C, HIV और TB से मुतल्लिक़ किए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, जो सहाफ़ी आते हैं, उनके लिए जो टेस्ट हैं वो हेपेटाइटिस B और C के किए जाते हैं और उनके मारे उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल पर DHU अस्पताल बहावलनगर के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त डॉक्टर अतीकुर रहमान की साथ मौजूद हैं। जी शहबाज प्रिंस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर DHQ हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि डॉक्टर उमर पर जो तशद्दुद किया गया है बेईमाना और जो इन्हें कत्ल कर दिया गया है उसके हवाले से यहाँ पर एहतजाज करते नजर आए। इनसे हम बात करेंगे। सर, आप मसीहा हैं और आज आप भी एहतजाज पर, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर अतीक हूँ, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट इस शोबा एनेस्थीसिया के।
तो इस वक्त हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत तशवीश की सूरत हाल है कि हमारे एक डॉक्टर उमर रफ़ीक को बेगुनाह और दरिंदगी से कत्ल किया गया, और ना सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया बल्कि उनकी लाश की बेहुरमती की गई। तो दो टोक बात ये है, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो लोग इस निज़ाम को चला रहे हैं, वाकई में उन लोगों से गुजारिश ये है कि इमारतों से ज़्यादा बंदों की जान की इज़्ज़त होती है। तो अगर इमारतों की तज़लील के ऊपर हुकूमती मशीनरी इतनी हरकत में आती है कि ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक दिनों में पहुंचा सकती है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी सी इज़्ज़त हमारे इन डॉक्टरों की भी है, और जिस तरीके से हुकूमती मशीनरी हरकत में आई है वैसे ही हरकत में आए, और डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब और उनके सोगवारिन जो हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, ताकि डॉक्टर कम्युनिटी में इस बारे में इत्मीनान हो कि वो एक महफूज मुल्क में रह के अपने अवाम की खिदमत कर सकें। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि डॉक्टर उमर को एक तो कत्ल किया गया, दूसरा बेदर्दी से, और उसके जो लाश जो है उसकी बेहुरमती की। इनका कहना है कि और बाब इख्तियार जो है इसी का सख्ती से नोटिस लें, ताकि उमर के जो लवाहिकीन है उन्हें इंसाफ फराहम हो सके। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर से बड़ी खबर दें आपको। लाहौर में चोरों के कब्जा से बरामद की गई सैकड़ों माल मुकदमा की मोटरसाइकिल बिलालगंज के दुकानदारों को सस्ते दवा फरोख्त करने का मामला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सख्त नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब ने डीएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन शेख आमिर सलीम को मुअत्तल करके सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी पंजाब कहते हैं महकमा पुलिस में गिरफ्त अफसरान के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि चोरी के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मजीद सारा मामला है क्या, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, इस कार्रवाई का तफसील से अहवाल बताइएगा। देखिए, जिस तरह से बात की जाए लाहौर पुलिस में करप्ट अफसरान की, तो शेख आमिर सलीम डीएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन तैनात थे, जिन्होंने अपने थाना से लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें जो है वो खुर्द बुर्द बल्कि चोरी करके जो है वो शहरियों को फरोख्त की थी, जिसका बाकायदा नोटिस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लेते हुए शेख आमिर सलीम करप्ट पुलिस ऑफिसर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और देखा जाए तो ये बतौर इंस्पेक्टर थे और ये डीएसपी का काम कर रहे थे, क्योंकि इनको जो है वो शोल्डर प्रमोशन देके डीएसपी लगाया गया था। जिस तरह से सिटी डिवीजन के 22 पुलिस स्टेशन है, किसी भी जगह गाड़ी चोरी का या मोटरसाइकिल चोरी का कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी एफआईआर जो है वो प्रॉपरली तौर पे जो है वो डीएसपी के पास जाती थी, और वहां पर जो मोटरसाइकिलें बरामद की जाती थी, और वही मोटरसाइकिलें बजाय मदई मुकदमा को देने के बिलालगंज के शहरियों को ये बड़े पैसों के एवज जो है वो फरोख्त कर देते थे। जिस पर जो है वो एक ट्रक की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ट्रक के अंदर जो है वो लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें थी बिलालगंज में जो उतरी, जिसके अब तक जो है वो तकरीबन 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्यादातर पुलिस एहलकार भी शामिल है। जिस तरह से शेख आमिर सलीम है इंस्पेक्टर लेकिन डीएसपी का काम कर रहे थे, उनमें से उनका एक बड़ा ही कार्य खास और इसके अलावा एक उनका अर्जनी मुबारक और तैयब जो थे ये मोटरसाइकिल चोरों के साथ मिलकर उनको फरोख्त करते थे। शेख आमिर सलीम इनके साथ पूरी तरह से साजबाज थे और इनके साथ जो है वो मुलव्वस पाकर इनसे पैसे लेकर ये मोटरसाइकिलें फरोख्त करते थे। आईजी पंजाब ने इंक्वायरी स्टैंड कर दी है, बाकायदा जेआईटी बनाई गई है और जेआईटी ने जो है वो कहा है कि साफ शफाफ जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। अगर बात की जाए डीएसपी सीआईए जो है वो इचरा की, तो उन्होंने जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया था और मुलजमान से इंटेरोगेशन की, जिसमें ये बात सामने आई कि डीएसपी इनमें गिल्टी पाए जाते हैं जो कि शेख आमिर सलीम है। उन्होंने तमाम मुलजमान को जो है इंटेरोगेशन करने के बाद सीधी सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है और फौरी तौर पर आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए शेख आमिर सलीम को जो है वो मुअत्तल करके क्लोज कर दिया है। देखा जाए तो जिस तरह से शहरियों की चीज छीनी जाती है या चोरी होती है तो उनको वापस मिलनी चाहिए, तो ये शेख आमिर सलीम अपनी करप्ट टीम के हमरा मिलकर
ये जो है वो मोटरसाइकिलें फरोख्त करते थे और उनसे पैसे बटोरते थे। बाकायदा तौर पर अगर मोटरसाइकिलों की बात की जाए तो तकरीबन 150 से जायद मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की गई हैं और इनका मुकदमा भी जो है वो इंक्वायरी के बाद दर्ज किया जाएगा। 9 लोगों को अभी सीधी सिटी पुलिस के हवाले किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मारूफ क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जुल्करनैन हैदर ने अपने बुजुर्ग शाह शमस तबरेज की मार्फत से बिलावल भुट्टो के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई कर दी थी। जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि सियासतदानों की मौजूदा लाट में बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बेहतरीन हैं। भुट्टो का नवासा और बेनजीर भुट्टो का बेटा कायदाना सलाहियतों से मालामाल है। यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद पर भी हमारे बुजुर्गों का दस्ते शफकत रहा। पीपल्स पार्टी नायब सदर स्पोर्ट्स विंग मियां अतीक के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट सेंट्रल पंजाब का भी दौरा किया है। दूसरी जानब सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की पाकिस्तान फेडरेशन में और अक्वा के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। मुलाकात में खवातीन वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले भी किए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर का खवातीन वर्कर्स के मसाइल और उनके फौरी हल के लिए जेंटलमैन स्टीरियम कमेटी फौरी तश्कील देने का हुक्म जारी करते हुए होम बेस्ड वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स के डेटा पर कानून साजी शुरू करने की भी हिदायत कर दी है। इजलास में इंस्पेक्शन रजीम में खवातीन के लिए मौजू काम करने के हवालात की फराहमी शामिल करने पर खसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। इजलास में चौधरी नसीम मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EOB आई साद नसीम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दुरे शहवाज CEO और दीगर मेंबरान समेत लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी राव जाहिद, डायरेक्टर लेबर दाऊद अब्दुल्ला, लेबर डायरेक्टर नॉर्थ इमरान हैदर और लेबर डायरेक्टर साउथ नदीम अख्तर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की पाकिस्तान फेडरेशन और अक्वा के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में खवातीन वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले भी किए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर का खवातीन वर्कर्स के मसाइल और उनके फौरी हल के लिए जेंटलमैन स्टीरियम कमेटी फौरी तश्कील देने का हुक्म देते हुए होम बेस्ड वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स के डेटा पर कानून साजी शुरू करने की भी हिदायत कर दी है। इजलास में इंस्पेक्शन रजीम में खवातीन के लिए मौजू काम करने वाले हालात की फराहमी शामिल करने पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। इजलास में चौधरी नसीम मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EOB आई साद नसीम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दुरे शहसवार CEO अक्वा और दीगर मेंबरान समेत लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी राव जाहिद, डायरेक्टर लेबर दाऊद अब्दुल्ला, लेबर डायरेक्टर नॉर्थ इमरान हैदर और लेबर डायरेक्टर साउथ नदीम अख्तर ने खुसूसी शिरकत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।